Hello and welcome. I'm Rahul, and you're watching me on my Facebook page or on my YouTube channel, Rahul Kumar Talks. And if you're watching me consistently, then welcome back to my channel. One thing I would like to tell you that I usually bring such kind of knowledge, such kind of subject. I used to enlighten such kind of contemporary world knowledge which can deepen your thoughts, which can give you some perspective about the latest development, which can apprise you of some development, and today I will be talking in bilingual, Hindi as well as English, because I thought that I should bring together, because many of the people are not able to understand what I'm talking in English, and I usually feel that. But I'm going to tell you that sometimes I used to be, what I say, personal, not only personal but pragmatic, because I wanted to enhance my knowledge, I wanted to enhance my speaking capability in English language, I wanted to improve it, I wanted to sharpen my blades, and most of the times I got success in it, and many of the times I can express myself and I can talk impromptu for a longer period of time in English language. I enhanced it, and now I feel that because many people are not understanding, then I should speak in Hindi as well. So today I will be talking about some थिंग दैट वी शुड ट्राई टू टेक केयर ऑफ अगर हम कुछ बातों को नहीं समझ पाते हैं तो ये हमारी व्यवस्था बन जाती है समटाइम्स, दैट वट एवर इज लेड अवे इन फ्रंट ऑफ अस, लेड डाउन, वी शुड अडेप्ट दैट और वी कैन चेंज दैट, जो हमारे सामने है हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव डेवलप कर लें, अपना नॉलेज डेवलप कर लें उसके बारे में, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। So first of all, I want to talk about that, because many of the times we believe in something and that's not true, because we have been given such a kind of information that it is true and we start believing in that. So such kind of perspective I want to change, some kind of superstitions, you can say that I want to change. So everything is not fabricated, there are truth in some things, there are mysteries, there are fabrication as well. So there are truths and there are not truths, you can say that no truth is there in something. So we have to believe that whatever is laid down in front of us, we usually believe in that. So many of the times I would say that belief is really stronger. आपका विश्वास बहुत ही important है और बहुत ही stronger है। अगर आप एक पत्थर में भी अगर सारे लोग विश्वास करने लगे ना, कलेक्टिव कॉन्शसनेस, अगर कलेक्टिव कॉन्शसनेस विश्वास करने लगे एक पत्थर में, तो पत्थर में भी भगवान का रूप हो सकता है। ये क्योंकि मेनी ऑफ द टाइम्स वी बिलीव इन दैट। कुछ लोग पत्थर में विश्वास करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग हिंदू धर्म से हैं तो पत्थर में ही भगवान होते हैं। कुछ लोग कुछ चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, मुस्लिम धर्म, वो सर्वशक्तिमान भगवान को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, और वो मानते हैं कि देयर इज़ नो, उसकी कोई स्वरूप नहीं है, तो वो उस पर विश्वास करते हैं, फिर भी उनको बल मिलता है। कुछ भी किसी स्वरूप को नहीं मानते हैं, फिर भी उनको उससे बल मिलता है। कुछ लोग जीसस को मानते हैं, जीसस में विश्वास करते हैं, तो जीसस में विश्वास करते हैं तो उनको जीसस से बल मिलता है। सो कलेक्टिव कॉन्शसनेस हैज़ पावर। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पीपल एक चीज़ में विश्वास करते हैं तो इसके पास बहुत बड़ी शक्ति है, सर्वशक्तिमान बनाने की शक्ति है इसमें। सो दैट्स व्हाई आई वुड सी दैट if you start believing in something, it is okay. Even in quantum mechanics, quantum physics, क्वांटम में अगर इंटैंगलमेंट होता है तो कोई भी वस्तु एक ही रूप में नहीं होती है, वो सुपर पोजिशन में होती है। एक ही वस्तु हर एक तरह के प्रकार में एग्जिस्ट कर सकता है अगर कोई उसे ऑब्जर्व नहीं करता है। लेकिन कोई अगर उसे ऑब्जर्व करता है, कोई उसे देखता है, तो वो एक स्थिति में अपने आप को ढाल लेता है, और अगर वो इंटैंगल्ड है तो दूसरी स्थिति भी जाना जा सकता है कि वो इस पोजीशन में होगा। सो दैट्स व्हाई physicists are able to discern that, at a very quantum level, and it is still in development. So that's why I would say that our belief system, our observing power, whatever हम ऑब्जर्व करते हैं उसका बहुत ही ताकत है। सो मैं बोलता हूँ कि अपने आप को कॉन्शियस बनाइए, अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, सो दैट कोई आपको ड्यूप नहीं कर सके, कोई आपको ठग नहीं सके, कोई आपको अंधविश्वास में ढकेल नहीं सके।
सो दैट्स वाई विल बी टॉकिंग अबाउट सुपरस्टिशंस टुडे, यू नो। सो मैंने पहले आपको बोला बिलीफ के बारे में। बिलीफ, विश्वास बहुत ही अच्छी चीज़ है जो होना चाहिए, और भगवान में है तो बहुत अच्छी बात है। सो मैं हिंदू प्रथा या किसी प्रथा को मैं रॉन्ग नहीं बोलता हूँ, लेकिन समथिंग आई लर्न अबाउट टुडे एंड आई रिसर्च ओवर दैट एंड लर्न दैट इट इज़ फॉल्स। पाम रीडिंग, हर एक चीज़ हमारे हिंदू धर्म में गलत नहीं है, लेकिन पाम रीडिंग जो है, हस्त ज्ञान, मैं इसे बिल्कुल ही गलत बताता हूँ। लेकिन क्यों, आप पूछ सकते हैं। लेकिन हमारे वर्ल्ड में 8 बिलियन पीपल, ऑलमोस्ट 8 बिलियन आबादी है, और सबके पाम्स, ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है, और हम जानते हैं कि सबके पाम, सबके फिंगरप्रिंट्स और टेक्सचर अलग होते हैं। पूरे हैंड की टेक्सचर की बात की जाए तो वो अलग होते हैं। तो हम उसे अगर रीड करना चाहें तो हमें क्या देता है, एक पैटर्न देता है। पैटर्न से ये हमें अलग और यूनिक बनाता है। हर एक आदमी को, 8 बिलियन पीपल के आदमी के हाथ में अलग अलग रेखाएं हैं, अलग अलग फिंगरप्रिंट्स हैं। सो वो हमें डिफाइन करता है, हमें एक यूनिक फिगर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है आपका लाइफ लाइन है, ये जो है सन लाइफ लाइन है, ये जो है आपका सन और डॉटर फैमिली लाइन है। ऐसा जो है ये बनाया गया है, ये फैब्रिकेटेड है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा होता भी है तो 8 बिलियन पीपल, अगर आपके पास 8 बिलियन यूनिक डेटा है, तब हम मान सकते हैं कि हाँ, आप यूनिक डेटा पे आप कुछ ने रिसर्च किया है, आप जानते हैं कि इसके फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, आप यूनिक बेस्ड डेटा पर, तब भी हम विश्वास नहीं करेंगे। अगर 8 बिलियन डाटा भी देते हैं कोई हस्त ज्ञानी, यू नो, वट एवर यू से दैट, एस्ट्रोलॉजर, वट एवर यू से, तब भी हमें विश्वास नहीं करना उस पर, ठीक है ना। 8 बिलियन, और हर एक आदमी के टेक्सचर जो है, फिंगरप्रिंट्स, वो डिफरेंट हो सकते हैं। 10 साल बाद हल्का सा चेंज उसमें आता है। एवरी फिंगरप्रिंट्स यूज्ड टू बी चेंज्ड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो 10 साल बाद वो चेंज होता है। इस तरह से अगर हमारे लाइफ में 3 बार भी चेंजेस होते हैं तो टुडेज वी नीड 8 into 3 24 बिलियन डेटा चाहिए हमें। इसे प्रूफ करने के लिए कि हस्त ज्ञान में नॉलेज है किसी पादरी के पास और किसी पंडित के पास नॉलेज है, वो 24 बिलियन नॉलेज रखा है। तो 24 बिलियन पर्चे निकालने में उसके तो दिमाग के पर्चे उड़ जाएंगे भाई साहब। दे आर नॉट सिलिकन चिप्स दैट कैन स्टोर 24 बिलियन, यू नो। They are human brains. They can't store 24 billion data in their mind. They cannot have such kind of random access memory. All they can have, हाँ, सुपर कंप्यूटर के पास हो सकता है। सुपर कंप्यूटर ये डाटा स्टोर करता है, वो डिस्टिंग्विश करता है कि ये पैटर्न आपके पास है, और आपका फिगर, आपका नाम उसमें स्टोर किया जाता है, उसको फीड किया जाता है, तब वो आपको पहचानता है कि आप फलाने आदमी हैं, क्योंकि आपका नाम उसमें डाला गया है, आपका चेहरा, आपका फोटो डाला गया है, तब वो आपको निकाल के देता है। इस फिंगरप्रिंट के साथ ये आदमी का डेटा फिल्ड किया गया है, उनके बायोमेट्रिक्स, उनके आँख के रेटिना का भी स्कैन किया जाता है, जिससे हमारा आधार में होता है। तो इस तरह के डेटा सिलिकॉन चिप्स में स्टोर किए जा सकते हैं। बट बेस्ड ऑन दैट, इफ समवन इज गिविंग यू, सम एस्ट्रोलॉजर इज टॉकिंग अबाउट, एंड दे आर थ्रोइंग यू इनटू सुपरस्टिशंस, यू शुड नॉट बिलीव इन दैट। शुडंट बिलीव इन दैट। आज के ज़माने में आप पढ़े लिखे हैं, आपको बिलीव नहीं करना उसमें। 24 बिलियन डाटा किसी भी पंडित के दिमाग में नहीं होता है, कोई आपको प्रूव नहीं कर सकता है, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई बोलता है कि ग्रहों की दिशा और दशा ये अफेक्ट करती है, हाँ, एस्ट्रोलॉजर्स भी, एस्ट्रोनॉमी में भी ये बातें आती हैं खुल के, और सम पीपल बिलीव इन दैट, इवन सम साइंटिस्ट बिलीव इन दैट। सो उन्होंने क्या कहा कि अगर रोशनी, जैसे ग्रहण वगैरह लगते हैं, रोशनी नहीं आती है, वी आर बेस्ड ह्यूमन लाइफ, तो हमारे ज़िंदगी में इसका प्रभाव पड़ता है। सूर्य की रोशनी अगर कोई अवरोध उत्पन्न होता है या कुछ होता है तो हमारे जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। तो ग्रहों की दशा, हमारा जो ये एस्ट्रोलॉजी है, हमारा एस्ट्रोलॉजी स्पेशली, ये ग्रहों की दशा जो टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद हमने सही नापा, पृथ्वी के डिस्टेंस कितना है, कितने एक्चुअली ग्रह हैं सौरमंडल में, ये टेलीस्कोप के पहले हमने नहीं मापा। जो भी मापा वो दिमाग से मनगढ़ंत परसेप्शन दिए गए। सो उसके बेस पे आप किसी का जीवन के बारे में नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, 10 साल बाद ये क्या बनेगा, 10-15 साल बाद ये क्या बनेगा, आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ट्रू डेटा है किस चीज़ का कि आपके ज़िंदगी में क्या घटेगा, ये आप नहीं डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन
थोड़ा बहुत ग्रहों के दशा के अनुसार आप बता सकते हैं कि हाँ इस टाइम में ये नेगेटिव पावर पे प्रिवेल कर सकता है। नेगेटिव पावर मतलब ये जो है माइंडसेट को चेंज कर सकता है कलेक्टिवली, नॉट अ सिंगल पर्सन, किसी एक आदमी की ज़िंदगी में नहीं, कलेक्टिवली ये चेंज कर सकता है। अगर ऐसे ग्रहों की दशा चेंज होती है, मून लाइट, सनलाइट, इट अफेक्ट्स आवर thought process actually. That's why we say that if light is not coming, negative powers will be developed, because सूर्य की रोशनी में वो तापमान होता है कि bacteria and other negative powers can be killed. That's why it happens. So be scientific. Don't be superstitious. Try to believe in that no one can dupe you with these kind of thoughts and this kind of process. So process driven baniye. So thank you for today's knowledge. I hope that you can conclude something better from me. And if you want to listen to me for all the things that I usually bring, you have to subscribe to my channel and my page. Thank you for listening to me.